Hello everyone, welcome to the lecture series of Design and Analysis of Algorithms. In today's video we will learn about count sort and its analysis. So let's begin. Now count sort is a non-comparison based sorting algorithm, that is count sort जो भी sorting करेगा input elements की that will be done without performing any comparisons. Now count sort जो होता है वो assume करता है that each of the n input element जिन्हें हमें sort करना है they are integer values in the range of 0 to k. So basically अगर हमारे पास कोई input data given है as data, let's say this is my data which is given और इस data को हमें sort करना है, right? So what is the maximum data value in this? 6 is the maximum data value, right? So basically इस data को sort करने के लिए जो हमारी range हो गई वो हो गई 0 से 6 तक. So k is equivalent to 6, right? So जो range है of data values that is small compared to the number of elements in our data. So count sort is efficient for smaller data values. Now count sort sorting के लिए 3 arrays को maintain करता है. One is the input array जिसमें हमारा input data है which is given to be sorted. Second, the output array B which holds the sorted output. And there is one additional array C जो जिसको हम यूज करते हैं for providing temporary storage. Now क्योंकि हम एक अलग से array maintain कर रहे हैं यहाँ पे for sorting our data, that is why we say it is out of place sorting algorithm. Since we require additional storage for sorting our data, out of place sorting algorithm. Now let's see the sorting algorithm for count sort. Now the first step is हम सबसे पहले एक additional sorting array maintain कर रहे हैं which is named as C और इसमें हमने K is the जो भी हमारा input data है उसमें जो maximum element है वो उसकी value हमने assign कर दी as K. So that is the range of our data जिसको हमें sort करना है, right? So let's maintain. So this is my additional array C, right? Now for each of the indices of C हम सारे indices को पहले assign कर देंगे with a value 0. Now let's take our data as suppose this is my data which is to be sorted. Now इस डेटा में जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट वो है 5. सो हमने एक C array मेंटेन कर लिया विद इंडिसेस 0 to 5. तो 0 to k ये हमारी रेंज हो गई C array की. दिस इज 5. इनिशियलाइज ऑल ऑफ दीज वैल्यूज विद 0. दिस इज द थर्ड स्टेप. और एक हमने एडिशनल एरे ले लिया विच इज आर एरे बी जिसमें होगी हमारी सॉर्टेड आउट, राइट? सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू. फॉर ईच j फ्रॉम 1 to length of a, what we have to do, we have to calculate the frequency of each of the element. So सबसे पहले हमने a of j की वैल्यू हुई 1, so c of a of 1 पे एलिमेंट है हमारा 2, तो C of 2 की वैल्यू को हमें इंक्रीमेंट कर देना है विद 1. तो C of 2 है ये वैल्यू, इसको हमने इंक्रीमेंट कर दिया विद 1. देन फॉर j इक्वल्स टू 2, C of 2 पे जो एलिमेंट 2, j इक्वल्स टू 2 के लिए C of a of 2 पे कौन सा एलिमेंट है? a of 2 पे एलिमेंट है 5, तो C of 5 की वैल्यू को हमें इंक्रीमेंट कर देना है बाय 1. सो C of 5 को इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1. Similarly for j equals to 3, j equals to 3 that means a of 3 पे कौन सा एलिमेंट है? 3, तो C of 3 की वैल्यू को हमें इंक्रीमेंट कर देना है विद 1. C of 3 की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1. नाउ फॉर j equals to 4, j equals to 4 के लिए a of 4 पे एलिमेंट है 0, तो C of 0 को इंक्रीमेंट कर देना है बाय 1, तो C of 0 को इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1. Then for j equals to 5, a of 5 पे एलिमेंट है 2, तो C of 2 को अगेन इंक्रीमेंट कर दो बाय 1, तो पहले थी इसकी वैल्यू 1, अब हो गई 2. Now for j equals to 6,
ए ऑफ 6 पे एलिमेंट है 3, तो सी ऑफ 3 की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो बाय 1. सो सी ऑफ 3 की वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1. देन फॉर जे इक्वल्स टू 7, ए ऑफ 7 पे है 0, तो सी ऑफ 7 को इंक्रीमेंट कर दो बाय, ए ऑफ 7 पे है वैल्यू 0, तो सी ऑफ 0 को इंक्रीमेंट कर दो बाय 1, तो ये वैल्यू भी हो गई 2. नाउ फॉर जे इक्वल्स टू 8, ए ऑफ 8 पे है 3, तो सी ऑफ 3 की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो बाय 1, सो दिस इज 3. सो आवर फाइनल सी एरे लुक्स लाइक, नाउ सी एरे लुक्स लाइक दिस आफ्टर स्टेप 5. तो बेसिकली हमने हर एक इंडेक्स की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी है. दैट इज 0 कितनी बार अपीयर हो रहा है इनपुट डेटा में 2 टाइम्स, 1 कितनी बार अपीयर हो रहा है 0 टाइम्स, 2 कितनी बार अपीयर हो रहा है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 0 टाइम्स एंड 5 1 टाइम. नाउ इन स्टेप 6 एंड 7 हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितने एलिमेंट्स जो हैं सी में वो लेस देन 0 है, कितने लेस देन 1 और या इक्वल टू 0 है, कितने लेस देन 1 या इक्वल टू 1 है, कितने लेस देन 2 या इक्वल टू 2 है, एंड सो ऑन अप टू 5. सो बेसिकली हम प्रीवियस दो वैल्यूज का समेशन करते जाएंगे इन ऑर्डर टू गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर इक्वल टू दैट वैल्यू और लेस देन दैट वैल्यू. सो नाउ लेट्स कम टू स्टेप 6 एंड 7. Now it says for I equals to 1 to k. K is step 1, C of 1 plus C of 1 minus 1 is 0. वो असाइन कर दो C of 1 को. That means C of 1 को क्या वैल्यू असाइन हो गई, 0 पे वैल्यू है 2, 1 पे वैल्यू है 0, तो C of 1 को वैल्यू असाइन हो गई 2. तो C of 1 पे आ गया, 0 पे है 2, 1 पे है 2. Now for C equals to 2, C of 2 plus C of 1 will be assigned to C of 2. तो C of 2 पे असाइन कर दो, 1 पे वैल्यू है 2 एंड C of 2 पे वैल्यू है 2, तो 2 plus 2 4. देन 3 के लिए C of 3 को असाइन कर दो, C of 3 plus C of 2. So C of 3 में वैल्यू है 3 and C of 2 में वैल्यू है 4. 4 plus 3 is 7. Then C of 4. C of 4 को रिप्लेस कर दो with C of 4 plus C of 3. C of 4 पे वैल्यू है 0 and C of 3 पे है 7. 7 plus 0 is 7. And 5 के लिए C of 5 को वैल्यू असाइन कर दो, C of 5 plus C of 4. C of 5 पे है 1 and C of 4 पे है 7, so 7 plus 1. So now after step 6 and 7 we know कि now कितने एलिमेंट्स हैं C के अंदर जो लेस देन है इक्वल टू 0 है 2, कितने एलिमेंट्स हैं जो लेस देन है या इक्वल टू 1 है 2, कितने एलिमेंट्स लेस देन और इक्वल टू 2 4, लेस देन और इक्वल टू 3 7, less than or equal to 4 again 7, less than or equal to 5, that is 8. Now we perform the sorting of this data by creating the new array B. So B की लेंथ उतनी होगी जितनी A की लेंथ है. Now we start performing the sorting. For j equals to a dot length down to 1, that means we are starting from the last value. J goes from 8 to 1. Now a of 8, this step a of 8 पे जो वैल्यू है वो हमें असाइन कर देनी है b of c of a of 8 पे क्या वैल्यू है 3, c of 3 पे क्या वैल्यू है, c of 3 पे है 7. तो A of 8 पे जो वैल्यू है वो असाइन कर दो B of 7 पे. A of 8 पे है 3, वो असाइन कर दो B of 7 पे. 3 comes over here. And now we have to adjust the values in C. So C of A of 8 पे है 3, so C of 3 minus 1. So C of 3 को एक वैल्यू से हम डिक्रीमेंट कर देंगे. It now becomes 6. For J equals to 7,
a ऑफ 7 पे जो वैल्यू है वो हमें असाइन कर देनी है टू b ऑफ c ऑफ a ऑफ 7 पे वैल्यू है 0, c ऑफ 0 पे है 2, तो b ऑफ 2 पे हमें असाइन कर देना है a ऑफ 7, सो b ऑफ 2 पे क्या आ जाएगा 0। एंड अगेन हम c की वैल्यू को एडजस्ट कर देंगे। a ऑफ 7 पे है 0, तो c ऑफ 0 पे हम एक वैल्यू से डिक्रीमेंट कर देंगे, इट बिकम्स नाउ 1। नाउ इफ वी केयरफुली सी ओवर हियर, ये वाला जो 0 है ये सेकंड पोजीशन पे है एंड दिस 0 इज एट फर्स्ट पोजीशन, और ये हमारे आउटपुट डेटा में भी सेकंड ही पोजीशन पे आया है, राइट। दैट मीन्स वी कैन से कि जो भी हमारा डेटा है सेम वैल्यू का, उनकी जो ऑर्डरिंग या पोजिशनिंग है वो चेंज नहीं हुई है इन आर सॉर्टेड डेटा, विच मीन्स दैट काउंट सॉर्ट इज अ स्टेबल सॉर्ट। नाउ फॉर j इक्वल्स टू 6, a ऑफ 6 पे है 3, सो a ऑफ 3 किस पोजिशन पे आ जाएगा, b ऑफ c ऑफ 3, c ऑफ 3 पे है 6, 3, that is 3 comes here. Again we will adjust the values of c. c of 3 को हम एक वैल्यू से डिक्रीमेंट कर देंगे, it will become 5. So this value now becomes 5. Now for j equals to 5, a of 5 पे क्या एलिमेंट है 2, सो हम 2 असाइन कर देंगे 2, c of 2 पे वैल्यू है, c of 2 पे है 4, तो b of 4 पे आ जाएगा a of 5 which is 2, so b of 4 पे आ गया 2, एंड c की वैल्यू c of a of 5 is 2, so c of 2 पे जो वैल्यू है उसको हम 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे, this becomes 3, this was 1. For j equals to 4 now, a of 4 पे क्या एलिमेंट है 0, तो b of c of 0 पे क्या है, c of 0 पे है 1, तो b of 1 पे आ जाएगा a of 4, a of 4 is 0, वो यहाँ पे आ गया। नाउ c की वैल्यू में चेंज कर देंगे, c of a of 4 is 0, so c of 0 को हम 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे, that becomes 0, so this becomes 0. For j equals to 3, a of 3 पे है 3, a of 3 को हम असाइन कर देंगे b of c of 3, c of 3 पे है 5, तो b of 5 पे चला जाएगा a of 3, तो b of 5 पे आ गया 3, एंड c में a of 3 पे है 3, तो c of 3 को हम 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे, which now becomes 4. So C array looks like this now. Now we come to j equals to 2. j equals to 2 के लिए a of 2 पे वैल्यू है, a of 2 पे है 5. 5 will be assigned of b of c of 5. c of 5 पे क्या वैल्यू है, c of 5 पे है 8, तो b of 8 पे चला जाएगा a of 2 which is 5, and c की वैल्यू में चेंज कर देंगे, c of 5 goes to c of 5 minus 1, so this value gets reduced by 1, it becomes 7 now. For j equals to 1 now, a of 1 पे जो एलिमेंट है that is 2, a of 1 पे जो एलिमेंट है वो चला जाएगा c of 2 पे, c of 2 पे एलिमेंट है 3, तो b of 3 पे हम असाइन कर देंगे a of 1 which is 2, and c value goes down by 1.
C of 2 which is 2. So this is our sorted data B after sorting this entire array. Now let's analyze the time complexity for this algorithm. अगर हम carefully देखें, सबसे पहले हमने स्टेप असाइन किया 1 and 2 जिसमें हमने C को इनिशियलाइज कर दिया टू अ वैल्यू 0. तो बेसिकली स्टेप 2 और 3 को अकर होने में कितना टाइम लग रहा है, कितनी बार ये रन होगा, ऑर्डर ऑफ k टाइम्स फॉर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, सो दिस विल टेक ऑर्डर ऑफ k टाइम. देन फॉर लूप फॉर स्टेप 4 इज एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम j इक्वल्स टू 1 टू a डॉट लेंथ है n. सो बेसिकली इसमें हमें कितना टाइम लगा, ऑर्डर ऑफ n. कमिंग टू स्टेप 6 एंड 7, 6th वाला जो फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट हो रहा है k टाइम्स. सो अगेन 6 और 7 स्टेप को कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ k. एंड देन जो लास्ट स्टेप है फॉर j इक्वल्स टू a डॉट लेंथ दैट मींस n टू 1. सो बेसिकली n टाइम्स रन हो रहा है, तो ये वाले हमारे दोनों स्टेप्स लेंगे ऑर्डर ऑफ n टाइम्स, राइट. सो बेसिकली इट इज समेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ k प्लस ऑर्डर ऑफ n plus order of k and plus order of n, right? So basically it's nothing but order of n plus k, right? अगर हम ले लेते हैं कि जो k की वैल्यू है that is equal to n only, so basically this will take not more than order of n time which is linear time. So चाहे कोई भी केस हो हमारा, चाहे बेस्ट हो, वर्स्ट हो या एवरेज हो, किसी भी केस में हमने जो n log n हमारे कंपैरिजंस लग रहे थे इन कंपैरिजन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, उसको हमने लीनियर टाइम तक ले आए विच इज ऑर्डर ऑफ n. सो काउंट सॉर्ट इज सॉर्टिंग डेटा इन अ लीनियर टाइम. So count sort beats the lower bound of n log n which is used for comparison based sorting algorithm since it is a non-comparison based sort. Count sort uses no comparisons between the input elements. Instead वो use करता है the actual values of the data which is to be sorted. Count sort is stable, ये हमने already देखा था algorithm में कि जो equal elements होंगे उनकी positioning same ही रहेगी in the sorted data as well as in the unsorted data. So that is why we say it is stable sorting algorithm. And count sort is not in place sorting algorithm क्योंकि हम एक additional array C maintain कर रहे हैं for sorting our data. Since this is required, so we say it is not in place sorting algorithm. So this is all about count sort. If you like the video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.